दिशा सालियन हरसेल्फ, बिकॉज ये सारा कुछ उसके साथ हुआ। क्या दिशा सालियन की मौत एक सुसाइड थी, या फिर दिशा सालियन की मौत एक हादसा, या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी? सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन केस का लिंक था या नहीं था? रोहन राय को सारी चीजें पता थी या नहीं थी? अगर पता थी तो रोहन राय चुप क्यों थे या चुप क्यों हैं? और नारायण राणे अब जब मंत्री बन गए हैं तब आज भी वही बात कह रहे हैं जो 1 साल पहले जब वो मंत्री नहीं थे तब भी कह रहे थे। ऐसा क्या है जो नारायण राणे जानते हैं? ये वो सवाल है जो इस केस में उठ रहे हैं। सवाल तो कुछ फैमिली से को भी लेकर हैं, क्योंकि फैमिली इतनी रिलक्टेंट क्यों है, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि फैमिली इतनी रिलक्टेंट क्यों है। अगर किसी को मालूम है कि मेरी बेटी की मौत हुई है और उसमें इतने सीरियस क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस तो बेबुनियाद होंगे, मैं मान सकता हूं, लेकिन कुछ का तो बेसिस होगा, लेकिन फैमिली कंप्लीटली निगेट कर दे और पुलिस को क्लीन चिट दे दे, तो फिर क्या समझा जाए? ऐसा क्यों कर रही है फैमिली? दिशा सालियन तो नहीं है, लेकिन ये सब जानना चाहते हैं कि आखिर दिशा सालियन के साथ हुआ क्या 13 और 14 जून को। आई बेग योर पार्डन, 13 और 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत केस से ये डेट्स रिलेटेड है। 8 या 9 जून को दिशा सालियन के साथ क्या हुआ, ये दोनों केस के बारे में कोई नहीं जानता कि आखिर हुआ क्या। You people are all most welcome to come and share what you think about the entire case, because ultimately मुझे लगता है कि ये केस अभी बंद नहीं हुआ है। पुलिस की डायरी में भले ही बंद हो गया हो, लेकिन पब्लिक डायरी में ये केस बंद नहीं है, क्योंकि अब इस केस को उठाने का बीड़ा मिस्टर नारायण राणे ने उठा लिया है। और मिस्टर नारायण राणे ने इस केस में उद्धव ठाकरे जो चीफ मिनिस्टर उनके खिलाफ ओपन जंग छेड़ी हुई है कि ऐसा क्या है जो वो छुपाना चाहते हैं और क्यों छुपाना चाहते हैं। That is something that we need to answer. Manny has already joined. Let's start with Manny. Good that Manny has joined. Let me just choose the picture which to be removed so that I can add her. Yes. Yes, Manny, please go ahead. I think it was a closure of a case, but that closure of case has raised many more questions. जितने आंसर्स मिलते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चंस रेज हो गए, और मिस्टर नारायण राणे का आकर खुलकर बोलना, I don't know what to say. Go ahead. Good evening, sir. Good evening. So sir, सबसे पहले तो I have question on the family. Please go ahead. जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है प्लीज रेज कीजिए, मेरे क्वेश्चन से ऐड हो जाए. So sir, I feel that if I just want to start with the last part in which you had said that the family was angry with Rohan because they knew they used to have, fights with each other. Yeah. And then they gave him a clean chit. Yes. Yes. Go ahead. Yeah, so I don't understand what is the meaning of this. You've lost a very young daughter, and there are the circumstances are that she fell from the top floor, and you're okay that she used to have fights with him and now it is okay. I do not see any kind of anger in the family for losing their daughter. They have given clean chit to the police. It's very clear. They have given a clean chit to the police. I don't know why. No, and sir, another thing I want to say is, मैंने आज तक रोहन राय की शक्ल ही नहीं देखी है. There's been he's never been in the media. I've never seen his face, any kind of coverage, nothing. Where did he vanish? Now, Kritika Manny is raising a question. She's saying a person of VIP, a person of his stature, of Mr. Narayan Rane's stature, is speaking for the last 1 year. But CBI is not taking any notice of what he is saying. Why? It is indicating intentions of CBI too. Basically saying that raises question mark on CBI as well. That when Mr. Narayan Rane is asking so many questions, why is CBI not investigating? Because Supreme Court ने CBI को right दिया है to investigate anything around Sushant Singh Rajput case. So how do you know that CBI is not investigating? No, she's not asking that. She's saying that raises a question mark on CBI because why is CBI not taking Mr. Narayan Rane's statement seriously and investigating in that direction? That's what she's saying. So I'm just reading out what she's saying. Yes. So I feel कि हमको क्या पता है कि वो investigate seriously कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, and if they are not able to come to any conclusion whether it is a political game or not political game, because Sushant Singh Rajput's case is so political, according to me. That is why we are not hearing anything about it. No, but then what Kritika is saying is justified because अगर मिस्टर नारायण राणे जैसे स्टेचर के आदमी अगर इस तरह के सवाल उठा रहे हैं तो इट इज वेरी
clear that CBI should take note of it. She's saying, why is CBI not taking note? So I'm saying maybe CBI has taken note of it, but they are not announcing anything. Now there's a difference. Okay. All right, understood. So what she's saying ahead is this: whenever Mr. Rane is pinched, he speaks about the case, but never does anything else. Okay, this also shows intentions of Mr. Rane, that he is only threatening Shiv Sena since then, and since there are many cases on him filed by the state government. All right, this should be his first and foremost duty, to give out everything that can help a case get justice, since he is presiding on he's sitting on an important seat. CBI and center should be ashamed that because of pressure that they are allowing justice to get hampered. This shows कानून अंधा होता है. That's what she's saying. My point is very simple. Mr. नारायण राणे, इसको दो तरीके से कृतिका देख सकते हैं. मिस्टर नारायण राणे ने एक स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगस्त 2020 में दिया, करेक्ट. आज एक साल बाद, उस वक्त वो मंत्री नहीं थे, आज मंत्री. वो चाहते तो चुप भी हो सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता. बहुत सारी चीजें बात करने को. पॉलिटिकल बैटल केवल एक दिशा सालियान केस पे थोड़ी लड़ेंगे, वो और भी केस है. वो इसी केस को क्यों पिक कर रहे हैं, और वो भी एक साल बाद. यानी एक साल पहले जो उन्होंने कहा वही एक साल बाद रिपीट कर रहे हैं. एक आदमी के लिए ये बात एक साल तक कहना ये छोटी चीज नहीं. कृतिका, यू हैव टू अंडरस्टैंड, कोई भी आदमी ही इज पुटिंग हिज नेक आउट एंड सेइंग आई नो देयर इज अ प्रॉब्लम. इससे ज्यादा कोई क्या कहेगा, क्योंकि ही इज नॉट एन इन्वेस्टिगेटर. He's a political leader, and he's a minister. He can only say what he can say. Beyond that, don't expect him to go and do the job of a police or an agency, investigating agency. ये काम तो मुंबई पुलिस या सीबीआई को ही करना है. वो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल लाजमी है. Yes, man, you go ahead. Yes, sir. So for me, I find it very strange that how Disha Salian's family has been very, very quiet. Secondly, मैंने तो रोहन राय को आज तक मीडिया में देखा ही नहीं है. Even when Disha Salian thing happened, and after that Sushant Singh Rajput's case, and they both were being linked together, I have never seen Rohan Roy being covered by media at all. It's like he just vanished from. He was not. He was. That's being said. No, he vanished. How? Why? Very tough to say. Answer that. Very tough to answer that. Mumbai police. We've not seen him taking rounds of the police station to justify that why his girlfriend jumped from the building. Mm-hmm. Why? Where did he go? And why was he not questioned? If he was questioned, what did he say? Sir, we have not seen him only. Media ने एक दिन में उसकी पिक्चर क्लिक करी है, मतलब कि वो था ही नहीं कहीं पे भी. He vanished overnight. Isn't that suspicious? That's exactly what Nitesh Rane is saying. कि रोहन राय अचानक गायब हो गया. क्यों गायब हो गया था? But Mr. Narayan Rane also claimed that Rohan Rai told him the entire story. He knows it. Nitesh Rane, मैंने देखा था सारा. I saw that coverage last year when Mr. Rohan Roy and then his son had really spoken a lot. When he had said that we have tracked Rohan Roy and we are going to talk to him और मैं उसको CBI के पास लेके जाऊंगा. I mean, I remember the whole story of both of them really talking, and they spoke more after Sushant Singh Rajput died. Then they spoke more about how Sushant Singh Rajput के घर में पार्टी हो रही थी, और 13th को हम सबको पता है किसका बर्थडे होता है. 13 जून को कौन से मिनिस्टर का सन का बर्थडे होता है, ये भी हमको पता है. Correct. So my question regarding Disha Salian is this only. मैंने आज तक रोहन राय की शक्ल नहीं देखी है. Where is he? How can police just close the case without even telling us कि भैया रोहन रॉय या वो जो friends थे वो क्या कौन सी पार्टी कर रहे थे? And sir, another thing I want to ask you is how did the father see her falling from the ground and she was wearing clothes? No, that is not said. आपने बोला है? नहीं वो उसने ये नहीं बोला, कहीं नहीं बोला मैंने. कहाँ बोला मैंने? नहीं, आपने बोला है कि her father saw her when she fell down, she was wearing clothes from the building. Police has said that it is the statement of the father because of which we concluded that this report or this such stories that she was not wearing anything is not correct, because her father told us, and because since he had seen the body when she had fallen. That's what police. So where did the father come suddenly when she is falling? That's exactly that's the reason why I raised the question ना, कि अगर ये बात मान भी लें कि जो कंटेंट है वो सही है, मैं भी मानता हूँ कि ये सब बकवास होगा, that you know all this kind of story that she was not wearing anything or this that, ये सब absurd होगा. लेकिन ये बात तो रिकॉर्ड पे है कि उनके फ्रेंड्स लेकर गए थे हॉस्पिटल, तो फिर फादर बीच में कहां से? Exactly.
And sir, another thing I want to ask is that there's a common factor. Now, what was common between Sushant Singh Rajput and Disha Salian? What was the common thing? What was the common factor? Go ahead. I'm just deleting a few spam messages. Please don't concentrate on me. You go ahead. I'm listening. So the common thing between both of them was, of course, the Cornerstone agency. जिसके लिए Disha Salian was working, the talent agency Disha Salian was working, and Sushant Singh Rajput का वो account manage कर रही थी, right? Yeah. उसका owner कौन है? उसका owner है बंटी सजदा. Bunty Sejda. Yes. Yes. Today, what has happened today? What has happened with this Cornerstone agency, and who have done a joint collaboration? कौन है? You please tell me. I'm into completely on a different research. कुछ और ही कर लिया है, मेरे दिमाग में नहीं है. Please specify जो आप कह रहे हैं. Don't ask me question, but मेरा दिमाग अभी वहाँ है ही नहीं. मेरा दिमाग पूरा दिशा सालियान के जो मैंने स्टडी किया मैं वहीं घुसा हुआ हूँ. तो इसलिए आपको ही बोलना पड़ेगा. So the common factor is Bunty Sajda, and he's Sajde, and he has done a joint. Now Karan Johar and Bunty Sajde have joined together and formed a new talent agency. Okay. Right. Okay. Now, who used to trouble Sushant Singh Rajput? Blind items and all that. So if you join now, all the dots are joining together. Okay. एक ये है. What else? एक तो मैंने सिद्धार्थ पिठानी का स्टेटमेंट ही बता दिया कि एक तो वही है. सिद्धार्थ पिठानी ने खुद ही स्टेटमेंट बोला है कि he was panicking. Mr. KK सिंह ने बोला है that he was panicking. So sir, I'm just trying to. सर मैनी की सर इंटरप्ट करना चाहूंगी कि मैनी जी की रिसर्च अलग लेवल पे ही है. नहीं वो मैनी का एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं मैनी टेक्स अस समवेयर एल्स तो क्या होता है कंप्लीटली फोकस कहीं और चला जाता है. No. नहीं It's all interconnected. उनका रिसर्च It is all vast research है. It is all interconnected. You need to explain ना. I should understand what you are trying to say. आप बोल दो कि इंटरकनेक्टेड तो मैं थोड़ी समझ जाऊंगा कि इंटरकनेक्टेड. आप एक्सप्लेन करो. मैं डॉट्स जॉइन कर रही ना इधर. Disha Salian and Sushant Singh Rajput में क्या कॉमन चीज थी? Why are we joining their case together? Why? And we have to understand ना कि why are we connecting कि Disha Salian's case is related with Sushant Singh Rajput. तो then I will see कि क्या कॉमन फैक्टर था उनमें. It was a talent agency. एक कॉमन फैक्टर और यही तो कॉमन फैक्टर था ना सर. और फिर जॉइन द डॉट्स है. फिर जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हो रहा था, then what Disha Salian told Sushant Singh Rajput, फिर speculations आ जाती हैं. Now when these things happen, then speculations happen, then we feel कि it is matching. See, there is a difference between Disha Salian case and Sushant Singh Rajput. I'll explain the difference. Yes, please. आज के डेट The difference is कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आज कोई नहीं बोल रहा है. कोई भी बड़ा नाम नहीं बोल रहा है. सुशांत सिंह राजपूत केस में कोई भी बड़ा नाम आके सामने स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा है. दिशा सालियान केस में मिस्टर नारायण राणे, who is a cabinet minister in union government, central government, दिल्ली में मोदी गवर्नमेंट में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर is saying that she has been murdered. ये कोई छोटी बात नहीं है. ये सुशांत सिंह राजपूत के केस में कोई नहीं कह रहा. And that's why the focus. No, sir. Mr. Nitesh Rane said it in August 2020 that Sushant was murdered. Nitesh Rane is his son. He's an MLA. There are a lot of MP also who said it. I am saying today, after 1 year, 14 months of Sushant Singh Rajput case, सब चुप हो गए हैं. क्यों? Why? Whereas Mr. Narayan Rane is raking up Disha Salian case, जिस केस को मुंबई पुलिस ने बंद कर दिया. प्लीज अंडरस्टैंड. सुशांत सिंह राजपूत केस खुला हुआ है. सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग. इस केस में तो एफआईआर भी नहीं है. इस केस को सीबीआई इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर रही. ये केस तो बंद कर दिया गया. Sir, another thing I want to know is the timing when the case is being closed. अभी पिछले 2 दिन से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी ना. 2-3 महीने पहले बंद हुआ. अच्छा, 2-3 महीने पहले. हाँ, ये क्लियर नहीं है. ये क्लियर नहीं है कब बंद हुआ, लेकिन ये बंद कर दिया गया. तो हमको तो पता नहीं चला. अब तो हम किसी को नहीं पता चला. ये आज मुझे पता चला, मैंने लाके रख दिया. क्योंकि जब कंट्रोवर्सी हुई है नितेश राणे और उद्धव ठाकरे में, तब जाके नितेश राणे, नारायण राणे, नॉट नितेश राणे. Nitesh Rane is his son. Mr. Rane, I will say. Narayan Rane. Confused.
Don't get confused. Nitesh Rane is his son. Yes. Narayan Rane is the Union Cabinet Minister. Yes. So Mr. Rane. तो हम तो यही सोच रहे हैं कि जब वो कंट्रोवर्सी हुई है तब केस को बंद किया है. नहीं, Okay, बिल्कुल नहीं. announced before. बिल्कुल नहीं. ये जो मुंबई पुलिस ने कहा है उसके मुताबिक मैंने दूसरा जो वीडियो किया है, प्लीज आप उस वीडियो को देखिए, सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. ये केस कुछ महीने पहले बंद किया गया, लगभग 11-12 महीने के इन्वेस्टिगेशन के बाद. सवाल तो यही है ना कि पायल, अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं था इसमें, एक सिंपल एक्सीडेंट था, तो फिर इन्वेस्टिगेट क्यों किया 11 महीने? क्या जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? ताकि सब कुछ, ताकि सही चीजें जाना जाए. कम से कम पुलिस के पास तो सही रिकॉर्ड रहे. अगर मान लीजिए कल नारायण राणे चीफ मिनिस्टर बन गए, फिर क्या होगा? फिर वो पुलिस वाले को बुला के पूछेंगे ना, तो वो जवाब क्या देगा कि क्या इन्वेस्टिगेशन किया था? कोई भी तो पुलिस के पास तो कुछ तो जवाब देने के लिए रहेगा ना. क्या व्हाट? डेफिनेटली नहीं, हम बोल रहे हैं कि अगर बाद में अगर नारायण राणे जी को बुलाया गया है और वो कुछ पूछे, तो कम से कम कुछ फैक्ट्स तो पुलिस के पास रहना चाहिए ना कि हम लोग ये किए हैं. ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरी तरह से खाली रहे. और जो सबसे पहली बात मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर एक इतना फॉर्मर मिनिस्टर अगर कुछ बोल रहे हैं, तो फैमिली इतनी तरह से डरी हुई या हस्टअप में क्यों केस को क्लोज करने के लिए जल्दी में है? वेरी डिफिकल्ट टू आंसर. यही तो सबसे, क्योंकि कोई भी फैमिली है अपने बच्चे के ऊपर, अगर वो सुसाइड हो या मर्डर हो, कुछ भी हो, एंड ऑफ द डे ऐसे नहीं करेंगे कि हमें कुछ. हीना मैम, आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है. हाँ, बोलिए नहीं. आई थिंक पायल का कनेक्शन कट गया. यस सर, मेरा तो यही बोलना है कि नारायण राणे जी ने कुछ टाइम पहले भी ये बात उठाई थी, और रोहन राय का आई थिंक उनके थ्रू ही, शायद मुझे तो उनके थ्रू ही पता चला था कि रोहन राय कहाँ है. उस वक्त तक तो यही बोलने में लग रहा था कि वो रोहन राय. मिस्टर नारायण राणे ने ही बताया था कि रोहन राय इज इन नागपुर. इज इन नागपुर, इज अलाइव एंड ही नोज एवरीथिंग. तो उसके पहले तक तो यही सबको लग रहा था कि शायद रोहन राय को भी उन लोग ने, मतलब वो मर गया है या ही इज कंप्लीटली, ही इज गॉन समवेयर, He was missing. या क्या मर गया था, मतलब उसका कोई he was missing, उसका कोई आता पता ही नहीं था कि वो है भी कि नहीं पता था. ये नारायण जी ने आके बताया था कि वो है, वो मेरे पास आया था, उसने मुझे सारी बात बताई. ठीक है, नारायण जी से मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि आप खाली वर्बल कॉन्वर्सेशन क्यों दे रहे हैं? अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत है, ठोस सबूत है, और आज आप ऐसी सीट पे बैठे हैं जहां पर आपके ऊपर भी एक फर्ज है कि आप लॉ एंड जस्टिस के जो भी ऑर्डर्स है उसको आप मेंटेन करें. अगर आपके पास, अगर पहले भी उन्होंने खाली बातें की, थोड़ा टाइम वो नीतीश राणे आए रिपब्लिक टीवी वगैरह में आके उन्होंने अपने अपने बयान दिए, अपने अपने जो भी उनको बोलना था बोले, और थोड़े दिन बाद सब गायब हो गया. अब आप जब शिवसेना के साथ आपका जब वापस पंगा चालू हुआ है और झगड़ा चल रहा है, तो आपने ये बात फिर से उठाई है. तो अगर आप एक बहुत ही एक जिस देश में आप रहते हैं, आप उसके अगर नियम को मानते हैं, और अगर आप उस कंट्री के सही नागरिक है, तो आपका एक फर्ज बनता है कि आप इस अगर आपके पास इस केस के बारे में पुख्ता सबूत है, इफ यू रियली हैव द एविडेंसेस एंड प्रूफ्स, देन आपको ये प्रूफ्स एंड एविडेंसेस को आगे देना चाहिए, और जो गुनहगार या जो भी है इसमें इन्वॉल्व, उसको सजा के लिए आगे लाना चाहिए. 1 साल के ऊपर से ये केस चल रहा है. लेट मी बस पुट अ फ्यू फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू. आप लोग जब भी कोई चीज बोलते हैं, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि कुछ फैक्ट्स को समझ में आना जरूरी है. किसके सामने रखेंगे? जब एफआईआर ही नहीं है तो किसके सामने रखेंगे? तो एफआईआर क्यों नहीं है? एफआईआर होनी चाहिए, बिकॉज आप मुझे बोले एक लड़की, मैं यही तो सवाल उठा रहा हूँ कि आपने 11-12 महीने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, एडीआर के बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं किया है? और ये तो कोई नॉर्मल केस नहीं था उसका डेथ का. तो जब एफआईआर ही नहीं है, तो मिस्टर नारायण राणे के पास अगर मान लीजिए कोई एविडेंस है भी, वो देंगे किसको? सीबीआई को जाके दे, क्योंकि सीबीआई तो इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर रही है इस केस को. सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत के केस के टाइम पे बोला था कि इस केस से रिलेटेड जो भी केसेस है वो सीबीआई उसको ओपन कर सकता है,
और Correct. जहां तक हम लोग को याद है 8 जून के बाद से सुशांत बार बार ये बात बोल रहा था कि अब इन लोग ने दिशा सालियान को मारा है, अब इन लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, मुझे भी इसके साथ लिंक किया जाएगा और अब मुझे भी इन लोग नहीं छोड़ेंगे। ये बात Correct. तब उसने Correct. बोली थी अपनी सिस्टर को Correct. या अपनी फैमिली को, किसी को बोली थी। तो Correct. इट केम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। वो डायरेक्ट सर कहाँ गए? आर यू देयर? प्लीज कैरी आप ऑन। है। हाँ प्लीज तो कैरी। हमारे पास तो प्रूफ है कि सुशांत ने खुद ही ये बात कही है कि दिशा आपके पास प्रूफ नहीं, आपके पास प्रूफ नहीं है, किसी ने क्लेम किया और आपको ये पता चला। सीबीआई के पास तो होगा ना, सीबीआई तो जानता होगा ना, उसकी सिस्टर ने तो बताया होगा ना। अगर उसकी सिस्टर से उसने ये बात की होगी तो कैसे सिस्टर को बुला के जो लिया है बयान सब लिया है सीबीआई ने, तो वो ऐसे ही तो नहीं लिया है ना। दे मस्ट हैव एवरीथिंग रिटन, रिकॉर्डेड, एवरीथिंग। हम तो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, उनके पास तो सारे प्रूफ रिकॉर्डेड हो गए, ठीक है ना। और नीतीश राणे और नारायण राणे जैसे इतने बड़े जो मिनिस्टर लेवल पे रह चुके हैं और अभी वो खुद एक रनिंग मिनिस्टर है, वो पहले आई थिंक सीएम भी थे मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है। आपने तो आपने नरेशन सुना नहीं है। हाँ, तो वो ऐसे तो हवा में तो नहीं आके इतने हाईली मतलब लेवल के आदमी ऐसी हवा में तो आके बातें नहीं करेंगे ना। मैं बताता हूँ, यू आर राइट मीना मैम, यू आर राइट दैट सुप्रीम कोर्ट ने ये राइट सीबीआई को दिया था। आप बोल रही हैं कि मिस्टर नारायण राणे ये चीजें क्यों नहीं प्रेजेंट कर रहे। मेरा पॉइंट ये है, क्या सीबीआई ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया कि वो दिशा सालियान केस में भी एफआईआर रजिस्टर करे? आंसर इज नो। करेक्ट। मुंबई पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया। अभी तक तो एसएसआर का केस ही नहीं खोला है सीबीआई ने। तो ठीक है, ओके, देयर इज एन एफआईआर एट लीस्ट इन दिस केस, देयर इज अ सीबीआई केस, बट उस केस में तो नहीं है। मुंबई पुलिस ने भी एफआईआर रजिस्टर नहीं किया। आप प्लीज इसके वैल्यू समझिए। जो मिस्टर नारायण राणे कह रहे हैं, जिसको मैं आज पिकअप में उठा रहा हूं, मैं ऐसे तो नहीं उठा रहा हूं ना। अगर मिस्टर नारायण राणे जो कह रहे हैं उसका रेलेवेंस नहीं है तो मैं क्यों उठा रहा हूं इस केस को। कोई भी यूनियन मिनिस्टर जो 1 साल पहले यूनियन मिनिस्टर नहीं था, एक मेयर एमपी था, बीजेपी के लीडर थे, उन्होंने 1 साल पहले जो कहा था, उस वक्त का कहना और आज उनका कहना, दोनों का डिफरेंस क्या है। उस वक्त he was not a member of, he was only a member of parliament, he was not a minister. उन्होंने उठाया बिकॉज उनको पॉलिटिकल उल्लू सीधा करना रहा होगा। ओके, मान लेते हैं। आज तो वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, मोदी गवर्नमेंट में मिनिस्टर है। उनको क्या एडवांटेज मिलेगा? नंबर 1, बहुत बड़ा एडवांटेज तो मिल नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। चीफ मिनिस्टर तो पहले भी रहे हुए है ना। तो वो आदमी पूरे सारे इश्यूज में, महंगाई, कोविड, गवर्नमेंट फेलियर, सब कुछ में से एक ही इशू पिक किया, वह है दिशा सालियान केस। क्यों? क्योंकि शिवसेना की नब्ज यही केस है। अकॉर्डिंग टू मी मिस्टर नारायण राणे हैज अंडरस्टूड कि जहां दुखती रग हो ना, जब उसको दबाते हैं तो दर्द होता है। शिवसेना की दिशा सालियान केस दुखती रग उनके पास है। एग्जैक्टली। तो इसमें फैक्ट्स तो बाद की बात है। आप जो बोल रहे हैं ना, वो फैक्ट्स तो तब प्रेजेंट होंगे जब कोई इन्वेस्टिगेट करेगा, उनके पास जाएगा, उनसे मांगना है। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है, उनका काम नहीं है कि दौड़ दौड़ के देते रहो। आपको अगर लेना है आप ले लीजिए, उनके पास हो सकते हैं फैक्ट्स। लेकिन मिस्टर नारायण राणे इज राइट मैनी व्हेन ही हैज डिसाइडेड टू रेक अप दिस केस, क्योंकि इस पूरे सरकार की अगर कोई दुखती रग है तो वह है दिशा सालियान केस। yes Manny, you have put it on mute. Yes, go ahead. Now I have unmuted you. Yeah, go ahead. Yes, sir. It's because the whole case has been hush-hush. जैसे मैं कह रही हूँ, मैंने रोहन रॉय की कभी शक्ल नहीं देखी है, ना मैंने पेरेंट्स को कभी पुलिस स्टेशन में जाते देखा। एटलीस्ट मीडिया हैज नॉट कवर्ड इट। व्हाई मीडिया हैज आल्सो नॉट कवर्ड इट? अब आप कह रहे हो दिशा सालियान का क्लोज 2-3 महीने पहले क्लोज हो गया, हमको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत में दिशा सालियान का नाम हमेशा आता रहा है। व्हाई इट्स नॉट बीन कवर्ड? It's a question. Why it's so silent? There is a reason. बट चलिए, देर आए दुरुस्त आए, देर आए चलिए दुरुस्त। अब उठाएंगे कम से कम, आई होप अब उठाएंगे। सर ये तो जैसे वो प्रभा had come and she had said कि इसमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, इसमें अगर लीगली हमको कुछ नहीं मिलेगा ना तो ऐसे तमाशे होते रहेंगे। नहीं, एक मिनट, कब साइलेंट हुआ है? आप एक चीज समझिए, आज आपको लग रहा है ना केस नहीं उठाएगा, ये मीडिया पक्का इस केस को उठाएगी। क्यों? मिस्टर नारायण राणे इज अ कैबिनेट मिनिस्टर, आप इग्नोर कर ही नहीं सकते ना।
आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। मिस्टर नारायण राणे अगर बोलेंगे तो इंटरव्यू कर रहे हैं ना लोग, उनसे इंटरव्यू किया, उन्होंने बोल दिया उसमें कि भाई दिशा सालियान केस में किसी को बचाया जा रहा है। आई वांट टू नो किसको बचाया जा रहा है, कौन है वो मंत्री? He is not He did not name, so we are not naming. Yes. सर No, he has not. I read it. I saw it. पुलिस I've seen ने that कहा, interview. सर पुलिस ने कहा था ना कि दिशा सालियान का केस डिलीट हो गया है, पूरे फाइल। कहा था ना, रिकॉर्ड डिलीट हो गया। हाँ, रिकॉर्ड डिलीट हो गया, अब रिकॉर्ड भी मिल गया और इसमें ये स्टेटमेंट भी मिल गया कि फादर ने वहां पर देखे हैं दिशा को। यस। हाँ, और जो इंटरव्यू आया था उनकी मम्मी और पापा का, जो हम लोग देखे थे, उसमें ये भी लिखा था, मतलब ये लोग बोले थे कि दिशा अलग रहते थे, वो लोग अलग रहते थे अलग जगह पर। तो उस टाइम उस तरह से प्रेजेंट कहाँ पर आ गए? तो पुलिस क्या मतलब क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? डिलीट हो गए, न्यू स्टेटमेंट भी मिल गए, उनके फादर्स कुछ और बोल रहे थे, इसका मतलब अचानक से चुप हो गए हैं। रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ। हाँ, डेफिनेटली क्लियर है। पुलिस अपने हिसाब से चला रहे हैं। पुलिस को जब लगा ये बोलना है डिलीट हो गया है, बोल दिया डिलीट। जब प्रेशर आया तब बोलने कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब समझ में आया कि कुछ निकलने वाला है तब बोल दिया क्लोज हो गया है। मतलब पुलिस अपने हिसाब से चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और ये अब तो डेफिनेटली इस केस के साथ सुशांत का लिंक है, डेफिनेटली 100% लिंक है। इसी के चलते ही पुलिस हश हश में ये केस को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और मिनिस्टर, इतने बड़े मिनिस्टर बोल रहे हैं दुखती रख की सिर्फ उनके पास है नहीं, सॉलिड प्रूफ है। इसी वजह से ही कोई इंसान अगर इतनी ठोक बजा के बोल सकते हैं, कोई बिना प्रूफ के इतने मिनिस्टर, क्योंकि उनको अपनी गद्दी का भी मतलब ध्यान रखना है कि अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो लोग मुझे आकर ब्लेम करेंगे। मैं इतनी बड़ी पोस्ट में हूं अभी, इसीलिए उनके पास रोहन राय की शायद सॉलिड कुछ प्रूफ, क्योंकि रोहन राय उसके बाद कहाँ है क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन शायद पुलिस को पता होगा इस तरह से। लेकिन आई विल टेल यू पायल, एक और चीज जो मैंने बताई नहीं। दिशा सालियान ने 2 दिन पहले एक वीडियो शूट किया अपने फ्रेंड के बर्थडे के लिए। 7th को उसके किसी फ्रेंड का बर्थडे था, आई थिंक जहाँ पे रश्मि देसाई थी। यस, रश्मि देसाई थी। उसके बाद गुरमीत चौधरी था, देवलीना थी। ये सब लोग जहां पर थे, उन्होंने कॉमन वीडियो शूट किया टू सेलिब्रेट हर फ्रेंड्स बर्थडे। ओके, उसमें दिशा वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। ऑलराइट, बिफोर द पार्टी शी वाज वेरी हैप्पी। बिफोर द पार्टी शी वाज वेरी हैप्पी। सडनली ऐसा क्या हो गया सडनली कि इतनी सारी चीजें हो गई। शी जंप्ड आल्सो, इतनी कहानियां आ गई। वो चैट पूरा मैंने पढ़ के सुना दिया कि एग्जैक्टली व्हाट द फ्रेंड हैज सेड। ये सब इतने फैक्ट्स ऐसे नहीं आते हैं जब तक कुछ हो ना। फैमिली को लेकर कहना है कि फैमिली वाज शाउटिंग एट रोहन एट दैट टाइम, बट लेटर ऑन द फैमिली सेड रोहन के साथ हमें कोई इशू नहीं है। हो सकता है उस दिन they must be angry because of the situation, possible, but why would you give a clean chit to the police? Why would you do? तो बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब उस वक्त चिल्ला सकते हैं, लेकिन बाद में क्वेश्चन तो रेज कर सकते हैं ना। को इंटरेस्ट एंगर में नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है, because कोई इंटरेस्ट नहीं है। They've lost a daughter और उन्होंने अभी तक FIR भी नहीं फाइल करा है। चोरी होती है घर में, हम FIR कर देते हैं, दर्ज कर देते हैं। There's a reason why they're not even, they've lost a daughter. Either that or the family is under pressure, tremendous pressure. वही सर, yes, pressure क्योंकि इसलिए मैं प्रेशर की बात बोल रही हूँ। Please remember that. I think Payal was referring to this. जो इंटरव्यू उन्होंने टेलीविजन चैनल पे दिया था, उसमें तो अचानक से चुप हो गए थे। हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे ना, राइट? और माँ वहां रो भी रही थी और बहुत कुछ बता रही थी, फिर अचानक चुप हो गए। अचानक क्यों चुप हो गए? चुप हो गए डेफिनेटली। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पुश किया है कि बस हो गया और मत बोलो। फोन आया, ऐसा लगा कि कोई फोन आया, किसी ने कुछ इशारा किया और सब चुप हो गए। सब चुप हो गए हैं। और तो उसके बाद उन्होंने किसी मीडिया हाउस से कोई बात ही नहीं किया। सर ये तो हम लोग देखते आए हैं। अगर पुलिस बोले कि ऐसा चल नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग देखे हैं कि मतलब कुछ बोलते हैं, फादर मदर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, विटनेस कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेशर के चलते उन लोगों को बंद किया जाता है। तो इसके मतलब यही होता है ना। और नहीं मतलब कम से कम प्रेशर कुछ तो होगा।
ऐसा नहीं कोई मम्मी पापा, कोई फादर, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को एंड ऑफ द डे में क्या हुआ वो जानना ही नहीं चाहेंगे। शायद वो लोग भी जानना चाहते हैं हम लोग की तरह। ये इम्पॉसिबल है, ये तो माना ही नहीं जा सकता। हाँ तो इट्स नॉट पॉसिबल कि एक पेरेंट जो है, जब इतने सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हो, मिस्टर नारायण राणे क्वेश्चन रेज कर रहे हो, नितेश राणे क्वेश्चन रेज कर रहे हो, जर्नलिस्ट रेज कर रहे हो, आपसे जर्नलिस्ट बात करने के लिए आ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि सब कुछ हंकी डोरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस इज डूइंग अ फैबुलस जॉब। और ये भी बोला गया था सुशांत के बारे में पूछने पर कि सुशांत के मम्मी पापा को, किसी को, पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि सुशांत कौन है या फिर क्या है, बल्कि सुशांत उस दिशा के डेथ के बाद वो इतना ज्यादा परेशान हो गया था, और पेरेंट्स बोल रहे हैं दिशा के कि कौन सुशांत है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता है, वो मैनेजर कम, ठीक है इस तरह से वर्किंग प्लेस में कुछ पता नहीं होगा, लेकिन ऐसा फिशी तो कुछ हो ही सकता है जो पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह से पता हो, इस वजह से वो लोग चुप हो गए हैं। मतलब पुलिस को सिर्फ इस केस को दबाने के लिए जल्दी में इसे क्लोज करना, और इस तरह से क्लोज करना कि पब्लिक को पता भी नहीं चले, आप बताए तो पता चला कि ये केस तो कब का क्लोज हो चुका है। अब नारायण राणे जी, इस देश में जर्नलिस्ट हैं और मीडिया एक्टिव है, ऐसा नहीं है कि सारे जर्नलिस्ट सब सो गए हैं, जर्नलिस्ट हैं जो जगे हुए हैं, और जब तक जर्नलिस्ट हैं, जब तक मीडिया है, फैक्ट्स तो सामने आते रहे। So another thing I feel that another thing is this trend of making young girls fall from the buildings. Divya Bharti mein also she fell down. Drunk, okay, same story. Look at the stories that they are telling. Now there's a similarity between Jia Khan's case and Sushant Singh Rajput case. There's a similarity between Jia Khan case and Sushant Singh Rajput case. Yes. There is a similarity, and also Pratyusha Banerjee case. Yes. And there is a similarity between Disha Salian and Divya Bharti case. Yes. So there is a pattern, and the thing is Sushant Singh Rajput के केस को भी वो ऐसे ही बंद कर देते till that Bihar police came into the picture. Now that is why I always believe. So in these two cases जो difference है सुशांत सिंह राजपूत केस में और दिशा सालियान केस में, वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के पेरेंट्स प्रेशर में नहीं आए, फादर प्रेशर में नहीं आए, उन्होंने फिर भी केस किया, चाहे जो भी केस किया, लेकिन दिशा सालियान के पेरेंट्स शायद प्रेशर में आ गए। अच्छा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट उन्होंने वो बिहार स्टेट का वो बेनिफिट हो गया ना उनको, दे कुड इंस्टिगेट द बिहार पुलिस। दिशा सालियान किसके पास जाएगी, पेरेंट्स किसके पास जाएंगे, वो तो मुंबई के रहने वाले हैं। एंड देन द कनेक्शंस आल्सो, Sushant's family has a lot of connections, his own brother-in-law. What are the questions that comes to your mind? क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं इस केस में? मुझे एक बात पूछना है कि मुंबई पुलिस ने क्या रोहन राय का स्टेटमेंट लिया है? कोई आइडिया नहीं। There has never been पुलिस ने जो कहा है क्लोजर रिपोर्ट में, उसमें कहा है फैमिली। अब फैमिली में रोहन राय को इंक्लूड किया है नहीं किया है, आई एम नॉट श्योर। सर, मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि मीडिया ने इसको फॉलो नहीं किया है। There has been no follow up on Disha Salian. मीडिया को फॉलो नहीं करने से तो पेरेंट्स नहीं मना कर रहे हैं, कैसे मीडिया इस तरह से फॉलो करे? ये आप नहीं बोल सकते। मैं बताता हूं, कल मिस्टर नारायण राणे ने स्टेटमेंट दिया, कल ही दिया है ना, राइट? और कल से लेकर आज तक मीडिया ने इस केस को उठा दिया ना। आज तक की बात कर रही है ना नीना मैम, आज तक की बात कर रही है, आज तक ने इंटरव्यू लिया है ना भाई, वहां पर उन्होंने इस केस का जिक्र किया है, दूसरे मीडिया हाउसेस ने भी इंटरव्यू किया, उसमें भी जिक्र किया है। अगर मीडिया को इंटरेस्ट नहीं होता तो मीडिया मिस्टर नारायण राणे से इस चीज पर सवाल क्यों पूछ रही होती? देखिए, हर मीडिया को पूरा इंटरेस्ट होता है, लेकिन मीडिया किसी केस को तभी तक फॉलो करती है जब तक उसमें हीट होता है। अगर पेरेंट्स ही कह देंगे कि मीडिया हमको हाउंड कर रहा है, मीडिया हम पर प्रेशर डाल रहा है, तो मीडिया 2 स्टेप पीछे जाएगा, बिकॉज उनके खिलाफ भी केस हो जाएगा। नहीं सर, अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू, तो रिया चक्रवर्ती के साथ क्या होता है, मीडिया चुप हो गई थी। I'm sorry, I don't agree. नहीं, एक मिनट. There's a difference. Many, when you say ना, my counter is not ready, I will accept it. रिया चक्रवर्ती ने जाकर पुलिस स्टेशन में नहीं कंप्लेन किया है कि मीडिया इज हाउंडिंग। जब उनके फादर को अंदर घुसने नहीं आता, she made a call, but she never made a formal complaint कि मीडिया मुझ पे प्रेशर डाल रही है, मेरे पेरेंट्स प्रेशर डाल रही है। उनके पेरेंट्स ने कोई कंप्लेन नहीं किया है कहीं पर भी, लेकिन दिशा सालियान के पेरेंट्स ने बाकायदा कंप्लेंट एसीपी को लिख के दिया है। नो सर,
रिया चक्रवर्ती ने पूरा इंस्टाग्राम में ये पोस्ट डाला था। अरे इंस्टाग्राम पूरी पोस्ट नहीं अरे करता है। Mary, Then this police is not the came. world that we can No, live she got illegally. police protection, no? Instagram, Facebook, WhatsApp is not the world. You have to make a formal complaint before the police, which was not made in the case So of. then why was she escorted by police everywhere? after That's a that? different issue. Don't bring the two things together. There is you have asked a basic question: why did she not make this? So there was no complaint from Riya Chakravarti's father or mother saying that my daughter is being hounded or we are being hounded or media is putting pressure. But Disha Salian parents made a formal complaint to the ACP in writing. There's a difference. Let's not compare banana and oranges. You have to compare oranges with oranges. Yes, सर मेरे को तो लगता है कि दिशा सालियान के में ज्यादा पॉलिटिकल पावर है, इस करके ये सब ऐसे हो रहा है, मीडिया भी ऐसे चुप। Agreed. पॉलिटिकल पावर नहीं, पॉलिटिकल बहुत सारा प्रूफ भी है नारायण राणे जी के पास। इसी वजह से ही वो इस केस को इतना ज्यादा हाइप दे रहे हैं, क्योंकि दूसरे केस के पास शायद ओपोनेंट पार्टी के लिए इतना बड़ा कोई प्रूफ नहीं होगा। डेफिनेटली आपके दिमाग में कौन से क्वेश्चंस आते हैं? सारे क्वेश्चन आपने पूछ दिए। सो मुझे मेरे क्वेश्चन को छोड़िए अपने क्वेश्चन। मुझे सिर्फ ये पूछना है, मुझे सिर्फ ये मतलब सबसे बड़ी पहले ये पूछना है, जस्टिस के हिसाब से फादर मदर बोल दिए कि हमें कुछ नहीं जानना है, पुलिस ने केस को क्लोज कर दिए, बट नारायण राणे जी बोल रहे हैं हमें जस्टिस चाहिए। अब आगे ये केस का क्या हो सकता है? That's first question. Okay, what else? हाँ, तो अगर नारायण राणे जी चाहे कि पुलिस में जाकर ये केस को ओपन करे या फिर ऐसा कुछ हो सकता है? No, नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। He can go to court and file a PI. कोर्ट में जाकर ये वो उन्होंने बोला है, तो उन्होंने बोला है कि I will go to court if required. और उसके बाद भी अगर फैमिली बोले कि नहीं हमें कुछ नहीं करना है, तो कोर्ट क्या बोले? कोर्ट ऑर्डर आ गया तो फैमिली कुछ नहीं बोल सकती। ओके, मतलब अगर कोर्ट मतलब नारायण राणे चले जाएं हाई कोर्ट हाइपोथेटिकली एक PI लेकर और बोले that the family, my information says that the family is under pressure because of which this case is being hushed up and they are not taking steps. Mr. Narayan Rane will have to present a few facts to demonstrate कि इसमें prima facie FIR होना चाहिए। अगर वो सक्सेसफुल हो गए ये प्रूव करने में कि इस केस में फैक्ट्स क्लियरली हैं जो प्राइमा फेसाई FIR रजिस्ट्रेशन के लिए सफिशिएंट हैं और कोर्ट ने अगर ये मान लिया तो FIR रजिस्टर होगा। एक और बात मैं ये बोलना, एक और बात कि नारायण राणे जी के पास क्या प्रूफ है, क्या फैक्ट्स है, अभी तक वो लोग रिवील नहीं किए हैं। सिर्फ ये बोले हैं कि बहुत सारे फैक्ट्स हैं। मिस्टर नारायण राणे ने रोहन राय ने बोले, 1 मिनट लेट मी पॉइंट आउट, मिस्टर नारायण राणे ने लास्ट ईयर जब मीडिया से बात कर रहे थे वो लगातार उन्होंने कहा था कि मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है which indicates murder. He said please go and many stuff you will get it. He made this statement. Yeah, मैंने देखा है। Yeah. He made this statement that I have a copy. In fact, वो कॉपी उन्होंने सर्कुलेट भी किया था। पुलिस ने कहा कि ये कॉपी करेक्ट नहीं है। किसकी बात माने हम? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो या जो मिस्टर नारायण राणे दे रहे हैं। मिस्टर नारायण फोर्ज क्यों करेंगे? किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मिस्टर नारायण फोर्ज क्यों करेंगे? पुलिस की तो हमारी आंखों में कोई और वो मीडिया में शो भी किया था। करेक्ट। जो नारायण राणे जी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिए थे वो मीडिया में शो भी किए थे। कि वो क्यों नहीं दे रहे हैं, वो तो उन्होंने लास्ट ईयर ही रख दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके मुताबिक इंडिकेट करता है कि देयर वर फिजिकल वायलेंस। बहुत डिटेल में बोला था। आई कैन नॉट डिस्क्लोज बिकॉज इट इज रिलेटेड टू दिशा's privacy, so we respect her privacy, बट उन्होंने बहुत सारे डिटेल्स दिए थे और उसमें बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या क्या कहता है, कितनी इंजरी, कहाँ कहाँ क्या क्या इंजरी थी, सब कुछ डिटेल दिया। आई नाउ रिमेम्बर इट। मैं नीना मैम आप पूछ रही थी ना, उन्होंने सारे फैक्ट्स सामने रखे थे, बट पुलिस ने उसको शायद बोला कि ये करेक्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, जहाँ तक मुझे याद। दे डिनाइड द पुलिस के पास ऑथेंटिसिटी। तो एक ही इंसान का दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दोनों के पास अलग अलग, दोनों के पास अलग फैक्ट। इस देश में फोर्ज किया जा सकता है, ये हमने देखा है, लेकिन क्या मिस्टर नारायण राणे ऐसा करेंगे? आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। उनको फोर्ज करके क्या मिलेगा? मतलब पॉलिटिकली बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन उस तरह से फोर्ज करके तो
दूसरी हिसाब से भी तो वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को चलो कुछ एक मिनट के लिए मान लेते हैं, एक मिनट के लिए मैंने ये मान लेते हैं कि वो पोस्टमार्टम फोर्स्ड है, मान लेते हैं ना. सो यू ब्रिंग मिस्टर रोहन राय Exactly. and let him come in public and tell us. या Exactly. Why So is he that not coming in public and telling us कि that क्या is what हुआ? I am saying कि पहले दिन से ही आप बोल रहे हो ना कि उसकी फैमिली ने बोला है मीडिया हमको हैरेस करती है एंड ऑल दैट, वो तो बाद में बोला होगा ना उन्होंने, जब शुरू में जिस हुआ है तो रोहन रॉय कहाँ था? हम कितने लोगों की पिक्चरें देखते हैं, वो धक्का हो गया, उसकी गर्लफ्रेंड मर गई, ये हो गया, यू सी दैट. नहीं, रोहन राय is not her family ना. Her family is father, mother, brother and all. रोहन राय was a fiance. Fiance के साथ तो आज fiance है, कल नहीं है. He doesn't qualify to be a family. मैं फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रोहन रॉय की बात कर रही हूँ. What you are saying is कि initially जो family ने बोला तो family may have talked about pressure, but why was रोहन राय not coming? मेरा पॉइंट है कि फैमिली ने क्या बोला उसको हटाइए. रोहन राय तो पहले दिन से लेकर और आज तक एक बार भी कुछ नहीं बोला. Yes, there is no quote, there is no statement of his. नहीं तो मीडिया तो फटाफट न्यूज़पेपर में छाप देती है ये सब चीजें. क्यों नहीं? गूगल के अलावा रोहन राय का कोई पिक्चर ही नहीं है. There is गूगल nothing की for us करने to के अलावा see. नहीं Sir, there is नहीं nothing for us to कुछ नहीं see. है. No quotes बार from बार Rohan बार Roy, नारायण no राणे जी quotes from बोलते हैं. family. और ये जो फ्रेंड है, कॉलेज का फ्रेंड, पता नहीं कैसा फ्रेंड है, मतलब कि ग्रुप में सारा कुछ डाल दिया. क्या बकवास कर रहा है ये पार्टी हो रही थी. He was just trying to cover up. ये फ्रेंड जो है, ये ग्रुप, ये फ्रेंड कोई ऐसा नहीं है. ये फ्रेंड वो है जो कोट कर रहा है दूसरे फ्रेंड को जो उस दिन पार्टी में था. 5 लोग थे ना, मैंने नाम बताया ना सबका, हिमांशु, सबका नाम बताया मैंने. आज एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. जो 5 लोग थे उनका नाम जो लिया उसने, उनमें से किसी एक फ्रेंड ने उसको जो बताया, उसके बेसिस पे ये पूरा चैट कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया. कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में कहानी नहीं शेयर की जाती है. सर क्या बोल रहे हो? अगर क्राइम हुआ है तो वो कहानी, वो ये तो सुशांत सिंह राजपूत वाली बात है ना. उधर 4 नौकर थे, इधर 4-5 फ्रेंड्स हैं. They don't want to be. ये चैट तो कंफर्म कर देता है ना इतना कि ये 5 लोग थे, ये तो कंफर्म कर देता है. Yes. So look at the positive side of it ना. Why are we getting into the authenticity of it? मेरा पॉइंट ये है कि इसे कहता है रोहन, हिमांशु, 2 चाइल्डहुड फ्रेंड्स, नील, दीप एंड नील्स न्यू गर्लफ्रेंड. ये 5 लोग थे अपार्ट फ्रॉम दिशा. तो ये 5 लोग के तो वहां होने का प्रूफ हो गया ना. Yes. सर कोई मिसिंग था क्या? एक मिनट. Also, don't doubt this. India Today, which presented this report, said that we carried out a verification from the police. I'll read that out. और पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया कि ये चैट करेक्ट है, तब जाके हम इस चैट को प्रेजेंट कर रहे हैं. This message was been shared on college friends WhatsApp group, which Disha was part of, and upon verification, the police found the facts to be true. So आप किसको बिलीव कर रहे हो? इंडिया टुडे को बिलीव कर रहे हो? चिरिया चक्रवर्ती की किसकी इंटरव्यू करी थी? I am not believing anybody. I am just presenting the facts. So I am telling you, I don't believe what India Today has to write. That's your wish. That's your wish. It doesn't make a difference to me because 5 लोग थे. ये बात तो प्रूव होता है. ये बात भी प्रूव होता है कि इन्हीं में से 2 लोग या 4 लोग पुलिस स्टेशन हॉस्पिटल ले गए थे. फादर डिड नॉट टेक हर टू द हॉस्पिटल. क्योंकि पुलिस के मुताबिक फादर, इससे प्रूव होगा. हाइपोथेटिकली ऐसा भी तो हो सकता है कि इस चैट में कोई ऐसा नाम भी हो जो मिसिंग है. हो सकता है ये चैट भी जिसको जानबूझकर, ये भी हो सकता है. चैट भी प्लांटेड हो नहीं. मेरे चैट भी ऐसे हो सकता है. मैं पायल बता रहा हूँ ना, मुझे एज ए जर्नलिस्ट ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये प्लांटेड है कि नहीं है. मैं तो सिर्फ वो चीज निकालूंगा जो मेरे काम की है. मेरे काम की ये है कि 5 लोग थे. मेरे काम की बात है कि वो लोग कौन हॉस्पिटल लेके गया. ये तो ये चैट बोल रहा है ना, प्लांटेड होगा. मेरे काम की जो चीज है वो मैं निकाल लूंगा. तो सर बाकी पुलिस हमारे को बोल रहे हो आप क्वेश्चन करने के लिए. हम लोग तो सीबीआई बैठे हैं यहाँ पे. So many is questioning the authenticity of the chat. Yes, because everything is very मुझे भी लगता है कि ये चैट, इस चैट में ऐसा कुछ है जो मिसिंग है. ये चैट में प्रॉब्लम क्या है बताता हूँ. ये चैट इंडिकेट करता है सुसाइड. ये प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम. ऐसे लग रहा है कि जानबूझकर क्यों पढ़ना है. हमें तो काम की चीज निकालनी है. We don't get into this business. क्योंकि डाउटफुल नहीं होता तो मिस्टर नारायण ने प्रूव करे ना कि सुसाइड नहीं है और ये सुसाइड है. हमको थोड़ी प्रूव करना है. हम तो सिर्फ फैक्ट्स लेकर रख रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं.
मिस्टर नारायण राणे प्रूव चैट करे, को मुंबई देखकर पुलिस प्रूव करे। डेफिनेटली चैट को देखकर ऐसे ही लग रहा है कि जानबूझकर एक सोची समझी सुसाइड को एक प्लान की तरह से लिखकर, जैसे स्क्रिप्ट लिखा जाता है, किसी का स्क्रिप्ट लिखकर प्रेजेंट किया गया है ताकि सबको ये लगे, देखे कि दिस इज द चैट, वो ये हुआ है उस दिन। लेकिन इसमें ऐसा कुछ बहुत कुछ मिसिंग है जो पुलिस और नारायण राणे दोनों को ही पता है। ऐसा नहीं हो सकता है। एक वर्ड है, आई ऑल्सो डाउटेड इट। आप यू पीपल डाउट इट ऑन, मतलब इमोशन में सीधा के उड़ा देते हो ना। आई एम टॉकिंग, आई आस्क यू कि हाउ वेयर डू यू डाउट, तो यू विल से नो बिकॉज द कंटेंट इज थोड़ा गड़बड़ ना। देयर इज अ वर्ड इन दिस चैट, वो वर्ड कभी कोई चैट में यूज नहीं करता। कभी किसी को सुना है चैट में मीनवाइल यूज करते हुए? सुना है कोई मीनवाइल यूज करता है क्या चैट में? इसमें मीनवाइल यूज्ड है। मीनवाइल तभी यूज किया जाता है जब कोई लिख रहा हो प्रॉपर्ली, बाद में सोच समझ के, तब मीनवाइल यूज होता है। चैट करते वक्त आप मीनवाइल यूज नहीं करते हैं जनरली। इसमें ये कहता है, एक जगह कहता है व्हाई आर वी फोकसिंग ऑन दिस चैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मीनवाइल ऑल 4 बॉयज आर अंडर कस्टडी बट एट होम विद कॉप्स। ऐसे कोई नहीं लिखता है चैट। हाँ, this is really funny. I found it very strange. What, under custody at home only? होम नहीं, होम से मतलब रोहन राय के घर में ही तो इंसिडेंट हुआ था ना, वहां पे होंगे। सर, तो पुलिस उनको बैठ के चाय पी रही थी उनके साथ, क्या इमीडिएटली वो पुलिस स्टेशन क्यों नहीं लेके गई? पुलिस स्टेशन नहीं ले जाते हैं, ये सिस्टम नहीं है। मैनी अगर कभी किसी क्राइम सीन पे जाएंगे, मैं बताता हूँ क्या होता है। पहले जहाँ क्राइम सीन पे आते हैं वहीं पे 10 पुलिस वाले आते हैं। आप पहले वहां पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं, 3 घंटा लगाते हैं, उसके बाद ले जाते हैं। ये तो उस वक्त की बात बता रहा है चैट, 5 घंटे की बात नहीं बता रहा है। वो उस वक्त क्या हुआ वो बता। सर मेरे को लेकिन चैट में बहुत कुछ मिसिंग है। लेकिन बहुत कुछ मिसिंग, लेकिन चैट में बहुत कुछ काम का भी तो है। तो यू सी हाफ ग्लास एम्प्टी, आई सी हाफ ग्लास फुल। Another thing I find is कि ये जो ग्रुप मिलता है, whether it is in सुशांत सिंह राजपूत केस, 4-5 people there, एक आयुष शर्मा के बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं। मुझे आयुष शर्मा के बारे में बात करना है सर, प्लीज। आई वांट टू नो कि ये क्या चीज है। आयुष शर्मा इस केस से जुड़ा हुआ है क्या? नो, सुशांत सिंह राजपूत के केस में जुड़ा हुआ है। अच्छा, प्लीज गो अहेड। नहीं प्लीज गो अहेड। नो, व्हेन शी वाज टॉकिंग अबाउट समबडी इज मिसिंग ना। नहीं ठीक है, प्लीज गो अहेड। या so when she was talking about somebody is missing, so according to me Ayush Sharma is very important person in Sushant Singh Rajput case, और मुझे लगता है वो घर में था उस दिन। Ayush Sharma is the one who got Siddharth Patani। तो मैं एक्चुअली किसके घर में था? सुशांत सिंह राजपूत के घर में। नहीं, डोंट मेक वाइल्ड एलिगेशन। कल आपको बुला लेंगे। मैं नहीं ऐसे चीजें बोलेंगे, 10 बार सोचिए आप क्या बोल रही हैं। आप ऐसे बोले आपको पता है तब तो बुला लेंगे आपको किसी को। क्या आप बताइए? पता है ऑडियंस बहुत मेरे से डेंजरस चीजें बोलते हैं लोग, उनको अभी तक बुलाया नहीं है आप। मेरे को कैसे? माय जॉब इज ओनली टू एडवाइस यू, बाकी आपकी मर्जी। अब किसको कौन बुला रहा है मुझे मतलब नहीं है। बहुत सारे लोगों को पुलिस स्टेशन ले भी गए, सुनो ना सर, बिकॉज रिया चक्रवर्ती ने अपने रिपोर्ट में जब उसने FIR कराया था तो उसने आयुष शर्मा का नाम भी लिया था, वो सिस्टर के खिलाफ, आपको याद होगा। And then actually I was doing an investigation because I was trying to find similar ke Rakul Preet is from Telugu, she's from Hyderabad, and Siddharth Patani is also from Hyderabad, and Rakul Preet is a very close friend of Riya Chakrabarti. So actually I was trying to find their connection, and then I came across how Siddharth Patani came to Sushant Singh house. तो ये आयुष शर्मा लेके आया था सिद्धार्थ पटानी को। आयुष शर्मा है कौन? He is one of the no. He is one of the team members of Sushant. He was working with them. ये आनंदी धवन and all these, they were all. इसका नाम तो किसी भी चैट में इसका कोई जिक्र नहीं आया सर, ड्रग की चैट में आया था। He was part of the group. ये टाइम्स नाउ की जब चैट हुआ था, किसके ड्रग की चैट में आया था? ये इनके जो रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पटानी, इनका जो ग्रुप बना हुआ था, when WhatsApp messages were leaked on Times Now and Republic and all that, इसमें आयुष शर्मा was also in part of. आयुष शर्मा का नाम था। I remember that very clearly. अच्छा। I've been इसका आयुष शर्मा का बारी नाम आता है, पर कोई बात ही नहीं करता है उसके बारे में। He was very much there. And आपने आज शो नहीं किया, नहीं तो मैंने वो बातें करनी थी आपके साथ, तो सुशांत सिंह राजपूत के जो ये इम्पोर्टेंट हो गया था, तो I to defer it. Yes. That show is ready. I'll certainly come and, but there are many facts to present. एक चीज और इम्पोर्टेंट था, since you spoke about Rakul Preet,
रकुलप्रीत ने डिनाई कर दिया था, इफ यू रिमेम्बर मैनी, कि मेरा ड्रग से कोई लेना देना नहीं, करेक्ट? लेकिन जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अब केस फाइल किया है उसमें उससे क्लियर है कि रकुलप्रीत सिंह एटलीस्ट फॉर लास्ट 4 years was into this. 2017 का केस है, she has been summoned in that. And 2017 में कौन सी चार्ज पकड़ी गई थी? रिया चक्रवर्ती की. रिया चक्रवर्ती की. That is when all of them got into drugs. रिया चक्रवर्ती तो जिसके साथ भी होगी ना उसका काम खराब है. She is a bad influence on everybody. सबको अपने उसमें काम में डालना चाहती है वो. And sir, another thing I want to say, I know it's not related with the case, but another thing I want to say, उस दिन तो मैंने बोला था ना, रिया चक्रवर्ती was saying कि I'm at peace. Why are we letting her be at peace? मुझे रिया चक्रवर्ती के बारे में बातें करनी है. That interview she did with Rajiv Sardesai, I have a lot of questions regarding that. And ताई वाला वीडियो मैंने दोबारा देखा है. I saw the ताई वाला वीडियो again. And उसमें she said this very clearly कि मेरा जो ताई का क्लास है ना वो अलग ही है. मैं खुद काम नहीं करती हूँ, ये मैं छोटे-छोटे गुंडों से काम करवाती हूँ, मैं मैनिपुलेट करती हूँ. उस चैट को तो I don't take that chat so seriously. Please take it seriously because it matches with whatever has happened in the case. Please, सिद्धार्थ पटानी. उसके एटीट्यूड ही अलग है. उसमें उसकी एटीट्यूड ही अलग है. ताई वाला. No, Payal, I'm telling you, she has actually told what she does, and sir is taking, all men are taking it as a joke, and all women are taking it seriously. No, I take seriously जब मुझे लगता है कि इसमें कुछ कॉन्क्रीट है. Sir, आपको प्रूव करके देना पड़ेगा कि कॉन्क्रीट है. तब मैं अगर कल कोई लिंक आ गया, कोई स्टेटमेंट आ गया, मैं तुरंत से ले लूंगा उससे. No, sir, एक बात है. एक मिनट. This video was released on July 30th. ये पहले का वीडियो था, तो पहले क्यों नहीं रिलीज करा गया? Why after Sushant Singh Rajput's death this video was released? क्योंकि वो तो मीडिया ढूंढती है ना. हमने ढूंढा. मीडिया जब it was released on July 30th, somebody posted it. Exactly. तो that's what I'm trying to tell you. ये तो आप लोग ना ऊपर की कहानी केवल समझते हो. हम निकलवाते हैं तो निकलता है ना. मीडिया निकलवाती है तो निकलता है. जब हम किसी के पीछे पड़ते हैं तो हाथ धो के पड़ जाते हैं. That's how media is. Sir, I'm not talking about myself. I'm talking general media. बट जो भी है वो रिया चक्रवर्ती बता रही है वो क्या है. मैं तो 100% उस चीज को बिलीव करती हूँ because she is talking about certain things which actually match with how things have happened in Sushant's case. Okay. Yes, ma'am. सर एक बात और. हाँ, एक बात और है कि इंसान अगर कुछ फनी वीडियो भी ऐसा कुछ बनाता है ना, उसका उसमें झलक निकलता है जो वो खुद में होता है. तो रिया चक्रवर्ती जैसी थी वो अगर जिस तरह से वो बोलती थी, इसके मतलब उसके झलक उसमें आ रहा है. ये बहुत सिंपल और क्लियर कट है. Okay. So, anything while you have to say about Disha Salian? We don't discuss Disha Salian so much, and today we are discussing. Let's concentrate on Disha Salian case. Yes, because Sushant Singh Rajput case हम लोग रोज बात करते हैं, तो we'll have multiple opportunity to talk about it. But Disha Salian case we don't pick up on a daily basis because इसमें developments कम होते हैं. तो जब अब आज हैं, तो let's focus on this. Anything that you want to say regarding this case? नहीं, मुझे और कुछ ज्यादा पूछना है नहीं. बस मुझे यही एक डाउट रह गया कि फैमिली इस तरह से पीछे चल गए, जैसे बट पता नहीं नारायण राणे जी को ऐसा क्या मिल गया है जिस तरह से वो लोग वो ज्यादा इतना अप्रोच होकर इतने ज्यादा खुलकर सब जगह पर बोल रहे हैं कि इस केस में जस्टिस होना चाहिए. अगर सुसाइड हो तो किस बात की जस्टिस? Okay, question है, पायल, you respond to this. Kanan Devakar is asking this question. Why would all suspicious death cases doesn't have a suicide note? ये बात तो बहुत सही है. Every suspicious case में suicide note goes missing. Why? That's the question he's asking. Why does it go missing? You answer. सुसाइड नोट में कब मिलेगा? जब इंसान डिप्रेस में होगा, जब उसको कुछ दुखी होगा, जब उसको लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा, तब ना उस सुसाइड नोट. हम लोग जब दुख में होते हैं तब कोई गाना लिखता है, शेर लिखता है, शायरी लिखता है, तब सुसाइड नोट लिखता है. जो 2 दिन पहले खुशी में उछल रहे होंगे वो किस बात के दुखी है? वो क्यों सुसाइड नोट लिखेंगे? सुसाइड नोट इसीलिए नहीं होता है क्योंकि वो लोग सुसाइड होता ही नहीं है. सुसाइड तब होता है जब सच में इंसान किसी मतलब उसके कैरेक्टर में या फिर 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते पहले से सब नोटिस करते हैं कि वो बहुत डिप्रेस में है, वो बहुत दुखी है, तभी उनको समझ में आता है कि नहीं अब मुझे लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ को एंड तो करना इतना आसान नहीं है. ऐसा क्यों है कि जितनी भी कहानी आती है मिस्टीरियस डेथ की,
उसमें से सुसाइड नोट गायब हो जाता है। ऐसा क्यों? सुसाइड नोट जो भी होगा पुलिस तब ना गायब पुलिस होगा। लेकर आती है सुसाइड गायब नोट, तो नीना नहीं मैम आप होता। आंसर दे सकती हैं। गायब सुसाइड नहीं है होता, ही नहीं, सुसाइड नोट है ही सुसाइड नहीं, नोट होती ही क्योंकि नहीं वो है, सुसाइड ही वही नहीं तो है। हम बोल रहे हैं। ये सुसाइड नोट तो होगा तब सारे ना। जितने भी ये मिस्टीरियस केसेस है वो नहीं, अगर पुलिस पुलिस विद को इन 10 सुसाइड विद इन प्रूव हाफ करना एन है आवर तो सुसाइड नोट होना चाहिए। होना चाहिए। तब अब और तो पुलिस को खुद लिखना पड़ेगा। विद इन हाफ एन आवर पुलिस डिक्लेयर कर देती है ओ इट इज अ सुसाइड केस। तो ये भी तो एक वो है अनलॉफुल थिंग है कि पुलिस किस तरह से ये बात बोल सकती है जबकि वहां पर सुसाइडल कोई नोट नहीं है। और आप आधे घंटे में आप क्या कोई डॉक्टर है या कोई फोरेंसिक वो आप एक्सपर्ट है कि आप विद इन हाफ एन आवर आप डिक्लेयर कर देंगे कि ये सुसाइड है। हर जितने भी मिस्टीरियस केसेस है आप उसमें देखिए पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया है ओ सुसाइड केस है। तो पुलिस को तो मेरे ख्याल से सबसे पहले पकड़ के जेल में डालना चाहिए कि व्हाई आर दे गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक। दे हैव नो राइट टू से दैट। उनका काम है आए इन्वेस्टिगेट करे, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाए, पुलिस डॉक्टर को बुलाए, बराबर से पूरा इन्वेस्टिगेट करे और उसकी रिपोर्ट बनाए। Absolutely, They are not I supposed think to give the this is absolutely correct. What she is saying is absolutely correct. पुलिस को बगैर इन्वेस्टिगेशन किए इस बात को कंक्लूड करने का आधे घंटे के भीतर हक नहीं है या 1 घंटे के भीतर हक नहीं है कि ये सुसाइड है या नहीं। आई एग्री। अनटिल अनलेस के जो इसमें एक्सपर्ट्स है वो इन्वॉल्व हो। जैसे सुशांत के केस में 24 घंटे के बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। आई एग्री विद यू। अच्छा, जब उसकी डेथ हुई डॉक्टर को नहीं बुलाया जा रहा है और पुलिस पहले पहुंच गई। ये मुझे समझ में नहीं आया है। हमारे घर में अगर कोई किसी ऐसी सिचुएशन होती है हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको डॉक्टर पर हॉस्पिटल ले जाते हैं या डॉक्टर को बुलाते हैं। यहाँ डॉक्टर आया नहीं, कुछ आया नहीं और फैमिली वो चारों जन ने मिलकर डिक्लेयर कर दिया ओ ये तो मर गया है। ये सारे केसेस आप जितने भी ये केसेस देखे ये सब में इतनी मिस्ट्रीज है कि अगर इसको हम नॉर्मल समझ के अगर सुसाइड भी यू आर राइट। देखिए मुझे बताइए, अगर कोई सुसाइड कर रहा है, अगर मान लीजिए सुसाइड से ही डेथ हो रहा है या मर्डर ही हो गया, कुछ भी हो गया या एक्सीडेंटल डेथ हो गया, तो आप डॉक्टर जब डिक्लेयर करता है तभी डेड होता है ना। और ऐसे केस में तो आप डॉक्टर को तुरंत बुलाते हैं, करेक्ट? बुलाते हैं। फिर सुशांत के केस में डॉक्टर को तुरंत क्यों नहीं बुलाया पायल? यही मैं कल ये क्वेश्चन करने मांग रही थी लेकिन मुझे मौका नहीं मिला आपको पूछने का। बताइए ना, मैं आज आपसे पूछता हूँ क्यों नहीं आया? वो सिद्धार्थ ने पुलिस को कॉल कर दिया। सिद्धार्थ ने एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। पुलिस एम्बुलेंस के पहले पहुंच गई। तो पुलिस को कैसे पता कि यहाँ पे डेथ हुई है? इसका मतलब किसी और ने मान ली पुलिस को फोन कर, जो भी एक वो ड्रिल है, एम्बुलेंस को फोन जाता है तो पुलिस पीसीआर को साथ में जाता है, कनेक्टेड है, वो अलग चीज है। बट मेन पॉइंट ये है कि आपने किसी डॉक्टर को बुलाए बिना कंक्लूड कर लिया दैट ही इज डेड। इसका मतलब आपको मालूम था दैट ही इज डेड। यस, दैट इज द सिंपल। सबसे पहले तो डॉक्टर आना चाहिए, डॉक्टर आके चेक करेगा। और ये तो ये बात वहां मौजूद हर वो शख्स जो उस वक्त था। सर मुझे एक बात पूछनी थी सर, नीतू देवी थी ना, तो उन्होंने नहीं बुलाया था डॉक्टर को? किसी ने भी नहीं बुलाया डॉक्टर को। सिद्धार्थ पिठानी ने नीतू सिंह को फोन किया, उसके बाद एम्बुलेंस को फोन किया, उसके बाद नीतू सिंह से बात किया, लेकिन डॉक्टर को बुला के क्यों नहीं चेक कराया? जो सीपीआर ये दे रहा था और इसको बोला था चेक करने के लिए, तो डॉक्टर को चेक करना चाहिए था, लेकिन कोई डॉक्टर तो आया ऐसा कहीं है नहीं। तुमने नहीं की मेकर को बुला लिया लेकिन डॉक्टर को नहीं बुलाया। और सीपीआर देने की कोशिश कर रहे थे लेकिन डॉक्टर नहीं बुलाए। आप देखिए दिशा का भी जो केस है वो सुसाइड नहीं है। क्यों? जो एज पर पहले जो आया था सारा रिकॉर्ड कि उसको जब ऊपर से वो गिरी थी तो वो अपने बिल्डिंग की बाउंड्री के बाहर गिरी हुई मिली थी। तो अगर आप जंप करेंगे, अगर कोई लड़की मरना चाह रही है जंप करेगी तो वो करेगी। उसमें 2 वर्जन है मैम, आप उस वर्जन को बिलीव करना चाहते हैं इसलिए आपको वो लग रहा है। उसका दूसरा वर्जन है कि 2 कार थी, एक रेड और एक व्हाइट, और उसके बीच में वो गिरी थी। और इस बात को थी ना, नहीं पार्किंग की बात कर रहा हूँ, अंदर जो पार्किंग, बाहर कहाँ से चला? कॉलोनी के बाउंड्री के बाहर बोले उसकी बॉडी गिरी हुई पड़ी थी। ये आपने ये वर्जन को आप बिलीव कर रहे हैं ना, आप सुन लिए कहीं पर जो सुना है। हाँ, तो आप ऐसे वीडियोस देखेंगे तो उसका मैं जवाब नहीं दूंगा ना। अब मैं वो जवाब दूंगा जो मेरे पास है। आप कोई वीडियो देख के आ जाएंगी, मुझे बोलेंगी अंदर गिरी थी। जो पुलिस ने बताया, जो फैमिली ने बताया, जो विटनेसेस ने बताया, जो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, जो मीडिया ने रिपोर्ट किया,
उसके मुताबिक she fell between two cars, one was a white color car, the other was a red color car, below her flat. यानी अगर वो जो गिरी थी तो जहां नीचे जो पार्किंग है वहां गिरी थी, वहां पे गार्ड ने देखा, and then guard informed the police. The friends went down and they took her to hospital. ये भी सुनने में आया था कि तो एम्बुलेंस को अगर बाहर गिरी होती, नो अगर बाहर गिरी होती तो एम्बुलेंस बाहर आई होती ना, एम्बुलेंस अंदर क्या कर रही थी? तो लॉजिक भी तो अप्लाई करना। यस, व्हाट इज योर सेकंड थिंग यू सेड? नहीं, और ये भी आया था कि उसके फ्रेंड्स लोग, स्पेशली रोहन राय, वो ऊपर जो था घर पर मौजूद, इट टुक हिम लाइक 20 मिनट्स दिस आल्सो यू हैव आल्सो हर्ड सम, आई विल नॉट रिस्पोंड, आई विल नॉट रिस्पोंड। सर इतना ज्यादा आप वीडियो बहुत देखती हैं, आप थोड़ा कम। नहीं, इनिशियली बहुत सारी बातें निकल के, अब तो खैर मैं देखती, वही हम बोल रहे हैं, इनिशियली बहुत सारी बातें निकल के आई थी, तो नहीं पता कि कितनी सच और कितनी झूठ है। ऐसे सारे वीडियो देखेंगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। नहीं, मैं सारे सुशांत और दिशा के केस में आपको देखती हूँ। सुशांत और दिशा के केस में इतने ज्यादा रूमर फैला है कि इंसान, मतलब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, फैक्ट को असरटेन करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं ना, उसको आप देख लीजिए एज एन एंटरटेनमेंट वीडियो, इंक्लूडिंग मेरा भी, ठीक है? मेरे वीडियो को भी आपने देख लिया, अब इसका सही है या गलत इसको आपको चेक करना, करेक्ट? तो मैं जो कोट कर रहा हूं मिस्टर नारायण राणे, प्लीज गो एंड चेक मिस्टर नारायण राणे ने कहा कि नहीं कहा। मैंने कोट किया हिंदुस्तान टाइम्स, मैंने कोट किया इंडिया टुडे, मैंने कोट किया पीटीआई, मैंने कोट किया पुलिस रिपोर्ट। आप प्लीज गइए और चेक कीजिए कि ये करेक्ट है कि नहीं। इस बेसिस पे कंक्लूड कीजिए कि जो आदमी वीडियो बना रहा है उसको पता भी है या कोई भी कहानी सुनाने के लिए आ गया है। अगर कोई भी कहानी सुनाने आ गया तो कोई भी चीज कंफर्म नहीं होगी, मतलब काउंटर चेक नहीं होगी। अगर कोई आदमी ऐसे फैक्ट्स रख रहा है जो फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में है, जो फैक्ट्स और भी जगह है, और भी जर्नलिस्ट ला रहे हैं, तो उसको आप काउंटर चेक कर पाएंगे। ऐसे वीडियोस मत देखिए जिस वीडियोस का ना कोई सिर है ना कोई पैर है, लिखता कुछ है बोलता कुछ और है, और आप फिर भी देख के उसको मिलियंस ऑफ व्यूज देते हैं। यहाँ पर कोई आदमी लगा हुआ है 6 घंटे का मेहनत करके, रिसर्च करके आपके पास लाता है, आपको सुनाता है, आप सुनते हो, लेकिन फिर भी आप जाके उस वीडियो को देखते हो और उनका टीआरपी बढ़ा देते हो। हमारी टीआरपी बढ़ेगी, मैं वेट कर रहा हूँ, एक दिन आएगा अप्रिशिएट करेंगे। नहीं, I'm not talking about you, नहीं, हम लोग आप लोग तो आते हैं, रात के 1 बजे तक हम जाग नहीं रहे, हम लोग जाते नहीं देखते हैं। एंटरटेनमेंट तो चाहिए ना लाइफ में, देखना तो चाहिए, देखेंगे सब। हाँ, लेकिन विश्वास तो आप ठीक है करेंगे। परफेक्ट। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग इन जनरल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, गलत इंफॉर्मेशन कलेक्ट मत कीजिए। शुरू में हाँ मैं देखती थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा था मैं खुद पागल हो रही हूँ, तो मैंने बंद कर दिया। अब मैं नहीं देखती। अभी हम लोग सब बंद करते हैं। न्यूज के कुछ चैनल्स देखती हूँ और आपको देखती हूँ, बाकी जो दूसरे Yes. एक चीज और आप बोले कि नीतीश, थैंक यू सर, आई टेक अ लीव। परफेक्ट, थैंक्स। आज तक मैं किसी का नाम नहीं लिया है, आप ये बोल रहे हैं? नहीं, मैंने आज तक मैंने देखा ही नहीं है। आप अगर देखें तो आप बता दीजिए। वीडियो है, उसकी वीडियो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँ। वीडियो में बाकायदा उनको जब बोला क्या आपके ऊपर 4 एफआईआर केसेस लगे हुए हैं, तो उन्होंने सामने उसको बोला कि जो सीएम है उनका नाम लेके कि उनके जो बेटे हैं उसके ऊपर कितने केसेस है, उसको तो पहले ठीक पकड़ो जाके, उसको छोड़ो। दिस इज डिफरेंट। इसको इंटरप्रेट मत कीजिए प्लीज। नहीं, उन्होंने ऐसा कहीं नहीं बोला दैट एक्स पर्सन के बेटे, एक्स पर्सन जो चीफ मिनिस्टर है उनके बेटे इन्वॉल्व हैं, कहीं बोला? हाँ बोला। इवन नीतीश, आप ट्विटर में जाइए और नीतीश राणे का आप ट्वीट्स पढ़िए उस वक्त। आज की बात कर रही हूँ। हाँ, तो वो आप पढ़ के बताइए ना, वो पढ़ के बताइए ना। आई डोंट हैव, प्लीज रीड दैट, दैट विल बी एन एडिशन। ऐसी चीजें ही तो, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। बहुत सारी चीजें हो सकता है मैं मिस कर गया हूं, मैं तो चाहता हूं कि आप लोग आगे बताएं। तो अगर आपने पढ़ा है तो बताइए कोट करके कि ये ट्वीट उन्होंने इतने बजे किया और ये कहा। फैंटास्टिक, ब्रिलियंट, दैट्स व्हाट आई वांट। जरूरी थोड़ी कि हर चीज मैं कैप्चर कर लूंगा, पॉसिबल ही नहीं, लेकिन मुझे वो ढूंढना पड़ेगा अभी। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप बताइए, और नहीं तो जब ढूंढ लीजिएगा उसके बाद उस वक्त आके बोलिए।
वो मैंने पढ़ा है, लेकिन अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा। छोड़ जिसमें दीजिए, उन्होंने ऐसे ही बोला है कि अगर आप अभी इसको छोड़ दीजिए। सुशांत के मर्डरर को तो हमको बताइए, हम आपको ढूंढ के देते हैं। क्या समथिंग उन्होंने नहीं ऐसे नहीं, लिखा मैं था। कह रहा हूँ ना, वो जब आपके पास होगा तब आप बोलिएगा, कल फिर शो करेंगे, कल बोलिएगा। लेकिन अभी अगर कुछ और बोलना है तो बोलिए। नहीं, मैं यही 2 ही पॉइंट बोलना चाह रही थी। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल। Thanks a lot, Nina ma'am. Thanks, Payal. Thanks, Manny, for coming and collecting and connecting. Thank you so much. Just a request for all of you, or from all of you, that or to all of you, that आप लोग जब भी कोई वीडियो देखते हैं, प्लीज इंश्योर कि आप उसको काउंटर चेक करें, उसके फैक्ट्स को काउंटर चेक करें और उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें, जरूरी है। वरना आप हेडलेस चिकन की तरह हर चीज को देखते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे, और फिर मुझे आगे क्वेश्चन पूछेंगे और मैं बोल दूंगा कि एब्सर्ड है। तो मेरा पॉइंट यह है कि आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको क्या दे रहा है। जो प्लेटफॉर्म आपको करेक्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्लीज ट्राई टू स्टिक टू दैट, बिकॉज तभी आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगा। और कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी दे रहा हो, बहुत बार मैं भी गलती कर सकता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं गलती नहीं कर सकता हूँ, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। तो जरूरी नहीं कि मैं जो बोलूं हर चीज सही हो। आप अगर काउंटर चेक कर सकते हैं और उसके बाद मुझे आगे बता सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सेप्ट इट, अगर वो सही है तो। आई वांट दैट काइंड ऑफ इंटरेक्शन जहां पर आप भी आके बोले कि दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव नोटिस्ड, दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव रेड, सो दैट टेक्स द discussion to a different level. But don't blindly trust anything that is being served to you, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि आप इसी तरह कुछ भी सुनेंगे, कुछ भी समझेंगे और फिर उसी को सही मानकर आगे बढ़ जाएंगे। वो नहीं कीजिए, जो सही है केवल उसी को सही मानिए। A lot of people I think are trying are not able to connect. I think Rinku Kalita is trying to connect and I can't see her video. So anyway, doesn't matter. Thanks a lot for connecting. Stay safe, stay connected. Come back tomorrow. We'll be talking more about a lot related to any of the important cases, especially Sushant Singh Rajput case, because I was scheduled to do a show on that today. But today, because of Disha Salian case, I could not. I will try and come tomorrow and speak to you on that. But till then, take care, stay safe, good night, stay connected.